Hi Adi, welcome to our this interview sessions. So please introduce yourself, like in which year you are studying and which department are you from, and which company you got placed in, and yeah. Okay, hello everyone. My name is Hadi, and first of all, thank you to Sunam for having me here. I am from NIT Srinagar Computer Science Department, currently in my fourth and final year of BTech. I got placed in Infosys around December. I think the NSEM was also finished at that time, and so it was a really stressful moment for me that okay, now the semester is done. I have not got placed, but I think it was the last company that came after at that time in that semester. So that was it. Yeah. Okay, Hadi, I want to ask like what role are you selected for, uh, and what cities is offered if it's allowed to share, and what is the location, is there is any bond, and like what is the CGPA criteria and all. So actually, my role is specialist programmer level one trainee. They call it trainee, and they had come for many roles. Like I remember when the first message came, it was like a whole range 6 LPA to 20 LPA, and the 6 LPA one is called digital specialist programmer. Then I think 11 LPA is the mine one. It is called specialist programmer one. Then two is I think 14 or 15 LPA, and three is highest 20 LPA. So Infosys was famous for giving very low salary over the years. It's called one of those witch companies, Wipro, TCS, Infosys. Like I think was for many years it was 3.5 LPA. That role is still there, but this role I don't know why they are bringing it, but actually the thing is they are not giving 20 LPA to a lot of people. I think all India they are taking very few people for 20 LPA one, but 6 LPA and 9 LPA one there are many people. And like what is the location of the company if it is disclosed, or and what is the eligibility criteria like CGPA and Raj Okay, and all okay, that. yeah. So the thing is, the unique thing about our company is they did not give the offer letter or any acceptance letter till now. Only thing is, we just had to write an email. I think that counts as an acceptance email that, okay, your role is this and this is your CTC. They did not share any location or any other details. So yeah, that's a good intro, and like you tell us about your company. So can you please tell us like what is your preparation strategy? Like when did you start preparing, and what are the resources you follow? What are the platform where you practice DSA and all? तो आप थोड़ा सा इस पे बता दो कि आपने कैसे करा था. Okay, okay. So going as far as I remember, the first DSC question, I think I did it in October 2023 or 2024. I'm not sure, but the scenario was this. Okay, one of the college clubs has had posted a recruitment, and I was not know I did not know. Okay, we need DSA for placements and everything. I just had stumbled upon it on Twitter or somewhere, and I had just done one or two questions. So I remember that I had done I think four questions till that time, till that interview of the club, and that recruiter or senior, he was making fun of me. Oh, you have done four questions. I did not know it was something. But then afterwards, after some time, I was over a long period of time, I was thinking along the lines, okay, what is the best thing I should do? I did not search on like everyone searches on the internet, right? I did not search how to get placed or placement roadmap. I was searching, okay, what is the best thing to do as a career as a whole? So I found DSA after that, and it said, okay, it improves your thinking and problem solving, pattern matching, all those things. All of those are more fundamental. So I started doing DSA. I used that infamous Drivers DSA A to Z sheet.
and over the time I completed it. I think in third year, first sem of third year. That is, which is that one? Fifth sem. Yeah. Fifth sem, by fifth sem I had done it. So, and by sixth sem, I had moved on to started doing competitive programming about Code Forces, Code Chef, Ad Coder. But then I think 1 or 2 months before the placement started, I started seriously looking into it. Okay, how do you get placed, everything. Mm, So after that, okay, I knew, okay, I'm already good at DSA. Then, but I found, okay, I'm lacking in core CS fundamentals. Then I did that like 1 month before placements, before the seventh sem, which was summer holidays. I think the it was called Code Help by Babbar. That was a good place. So yeah, CS, OOPS, computer networks, all those things. I just did it in about 1 month. Most of it was just revisions because we had done it in class also. So yeah, Okay. And like total, how many questions you have solved across all the platforms like LeetCode, GFG, AdCode, or Code Forces, Chef? DSA questions I have done around, I think, 600 problems till now, and competitive programming I think 150, maybe 200. I can pull up right now how many I've done. I have this platform. Do you want me to do that? Uh, it's your wish. Can Okay, I'll just open it in the background. Here is it. okay, totally Okay, okay. this is the so DSA questions is more than 600. Okay. So most of it is from lead code. I think you can see lead, how many questions. Yeah, lead code. No, there's number of contests. Yeah. So you can see I was, but this does not show the separately DSA and CP. But anyways, DSA, it was no, I think most of it is just that. Yes, but like Yeah, in total you have done around 800 questions, so it's a yeah. very Yeah. good questions. Yeah. Okay. I was basically doing a contest every week. Like, Yeah, like I can see your number. Like LeetCode, you have 96 contests, so it's probably I don't have seen anyone who having such a participate in such a, large number of contests. So yeah, mm, that shows you the consistency. contest number is good. And it automatically increases your number. The most important thing I think about if you just give contests regularly and only absolve them, like what, one or two contests per week, and just absolving will take like say 5 hours per week. Mm. And of course, DSA fundamentals using that sheet, that is, I think, 200 to 300 questions plus contests, then you're good to go. Yeah, contest plays a lot, like a major role in placements. Like कि मतलब हम उस इन्वायरमेंट में यूज टू हो जाते हैं फास्ट पेस और स्पेशली अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो उसमें तो एकदम ऐसे सेकंड्स मैटर करते हैं सो लाइक हम एक काफ़ी फास्ट पेस इन्वायरमेंट में सीख जाते हैं कि लाइक हमें कैसे देना और लाइक अब सॉल्विंग इज द वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट यू हैव टॉक्ड अबाउट कि मतलब अगर आपने कॉन्टेस्ट दिया लेट्स से यू सॉल्व टू क्वेश्चंस बट द रेस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस यू डिडंट एबल टू सॉल्व अगर आपने उसको सॉल्व नहीं करा तो मे बी लाइक इन नेक्स्ट कॉन्टेस्ट सम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और सिमिलर सिमिलर की काइंड बात ऑफ भी नहीं, तो ये भी है कि हाँ इम्प्रूव होते हो और तुम्हारा जो वीक पॉइंट है उसी पे इम्प्रूव हो रहा है। अगर खाली तुम हाँ इजी सवाल कर रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं है। वो हो गया ऐसे ही, हाँ मतलब रिविजन के लिए ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ तो लाइक upsolve is a very good point. So so moving to specific to company like Infosys, like can you please tell us like how many OAs were there and like कितने घंटे का हुआ था like all ठीक है कितने राउंड्स हुए थे और लाइक कितने क्वेश्चन पूछे थे उसमें और क्या डिफिकल्टी था उस क्वेश्चंस का
And if you are able to share, then you can share us the question or like the topic, किस topic से questions आए थे, and yeah. ओके, सो खाली इन्फोसिस की बात नहीं है, बट आजकल जैसे एआई की वजह से बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, तो हर एक कंपनी ने अपना ओए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, लाइक इम्पॉसिबली। खासकर अगर ऑनलाइन है तो बात छोड़िए। तो आई डोंट नो उसका सोल्यूशन मैं नहीं बोल सकता कुछ, बट लेकिन हमें इन्फोसिस का ऑफलाइन भी था, वो बहुत मुश्किल था। जैसे वी हैड 4 क्वेश्चंस इन आई थिंक 3 और 4 आवर्स एंड इंक्रीजिंग Three डिफिकल्टी। hours. 3 आवर्स का था, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में था। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज जंप गेम, जो लीड कोड में फेमस है, आई थिंक लीड कोड मीडियम है वो था। और सेकंड वाला एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने उसमें सॉल्व किया था 3DDP से। 3DDP मेरे को पता था इसमें यूज होता है, इसलिए मुझे जल्दी आइडिया आ गया। अगर वहाँ हम सोचते कि ओके पहले रिकर्शन है, फिर मेमोराइजेशन है, टैबुलेशन, फिर पूरा टाइम इसी में जाता। मुझे याद था कि ये पैटर्न, आई थिंक LCS की कोई पैटर्न था उसमें, LCM, yeah. LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की कुछ ऐसा ही, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का था शायद, उसमें 3DDP यूज होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन आई थिंक वाज ग्राफ प्लस डीपी, लेकिन वो नहीं किया मैंने। एक्चुअली उनमें इन्फोसिस ने एक स्पेशल रूल रखा है कि जो हमें 4 क्वेश्चन है उसी बेसिस पे फिर जब नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है ना, उसी बेसिस पे तुम एक ट्रैक के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। मान लो जिसने एक क्वेश्चन किया वो हो जाता है DSP के लिए, 6 LPA वाले के लिए। जिसने 2 क्वेश्चन किए वो हो जाता है 11 LPA के लिए ट्रैक में। और फिर इंटरव्यूज में ऐसे होता है कि तुम डाउनग्रेड हो सकते हो अपने इसके लिए। ओके, अगर तुम 11 LPA वाला नहीं मिला, 6 LPA वाला मिल सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकता। तो इन्फोसिस ने वो चीज़ रखी है। वरना जैसे सैमसंग वगैरह में क्या होता है, कितने टाइम में एक ही पर्टिकुलर होता है कि जिसने ये सवाल कर दिया हो गया। इसमें इन्फोसिस में ऐसे नहीं था। एंड लाइक ये जो क्वेश्चंस आए थे, आई गेस इट्स मोर अबाउट, मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव का काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर किसी ने कर रखा होगा तो मे बी इट हेल्प्स, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव दैट कि जो 4 क्वेश्चंस थे उनमें से लाइक जो स्पेशली द थर्ड एंड फोर्थ, इट्स रियली लाइक आई कैन से दैट इट्स कोर फोर्स इज ऑब्वियसली कैंडिडेट जी। मास्टर क्वेश्चन 900 और हाँ हाँ, 1000 वो प्लस. वो ऐसे क्वेश्चन थे इंडिया में, लाइक 100 लोग कर सके पूरे इंडिया में, लाखों में से। तो उस हिसाब से वो इन्फोसिस को पता है ये वही लोग हैं जो 50 लाख की नौकरी के लिए रेडी है, उनको 20 LPA से आई थिंक खुश करने की कोशिश कर रही है। Okay, so you solved 2 questions in टू आई थिंक 2 या 3 एक क्वेश्चन में मैंने आधी टेस्ट केस पास किए थे। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने वहाँ पर इवन ड्यूरिंग दी OA मैंने जो उनका HR था उससे मैंने अच्छे से बात की। ओके, आधे टेस्ट केस पास करने से मार्क्स मिलेंगे या फिर पूरा टेस्ट केस पास करना है, लोग ये सब पूछते नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट उनके बारे में। जैसे मुझे पता था ओके इस क्वेश्चन में, जब मैंने उससे पूछा ओके टेस्ट केस, आधे टेस्ट केस करने से भी मार्क्स मिलेंगे, हर एक टेस्ट केस का सेम वेटेज है, तो मैं ओके मुझे पता था ओके इस क्वेश्चन में मैं आधे टेस्ट केस कर सकता हूँ। हिडन केसेस हिडन तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन एज केसेस नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन में किया था कि आधे केस पास हो गए। आई थिंक दैट हेल्प मी। Yeah, like this is very good point. Even I talked some of my classmates कि उन्होंने कुछ कुछ OAs में ये आधे टेस्ट केस पास कर रहे थे, क्योंकि लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि हम आपको सारा करना है, जितना हो सके उतना करो। द मेन थिंग इसकी फ्लैग नहीं लगना चाहिए, एंड मतलब आप किसी चीज़ में आपका प्रोडक्ट को फ्लैग व्लैग नहीं लगना चाहिए और अप्रोच ठीक होना चाहिए. So that's the thing. And yeah, Adi, what about the interview? Like how many rounds were there? And कितने राउंड्स हुए, कैसा हुआ, क्या क्या पूछा, एंड क्या डिफिकल्टी लेवल था उसका, ये सब थोड़ा बता दो. ओके ओके, तो हमें ऑफलाइन था हमारी कैंपस प्लेसमेंट में इन्फोसिस का। तो पहले दिन शाम को हुआ था OA, फिर नेक्स्ट दिन ही हुआ था ये इंटरव्यू। एक ही राउंड था इंटरव्यू का, हमें पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाके पता चल गया। तो सब लोग आगे इंटरव्यू सुबह आई, फिर उन्होंने ग्रुप वाइज बुलाया, फिर मेरी बारी आ गई लगभग 2-3 बजे, 4 बजे आई डोंट नो, आफ्टरनून टाइम में आ गई थी मेरी बारी। इंटरव्यू एज अ होल ईजी था, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि ये भी जैसे ऐसा होता रहता है कि एक बंदा निकला उससे पूछो क्या हो गया, वो चीज़ें भी हेल्प करती है। और जैसे मुझे पूछा उसने
JWT के बारे में JSON वेब टोकन, उसका मुझे पता नहीं था। एक सवाल था, मैंने सीधे बोल दिया मुझे नहीं पता। तो उसने ओके लिए, मैंने कॉन्फिडेंस से बाकी चीज़ें बोली थी। इट्स नॉट लाइक हर एक चीज़ पता होनी चाहिए या फिर खुद ही बनाने की कुछ कोशिश करो। उसने सीधे बोला नहीं पता, जो चीज़ मुझे आती थी मैंने बोल दिया मुझे आती है। और मुझे और सवाल पूछे थे और रेज्यूमे पे 1-2 प्रोजेक्ट थे उस बारे में उसने पूछा। और आई थिंक ट्रेड ऑफ स्केलेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स होते हैं ना सिस्टम डिज़ाइन का, वो थोड़ा पूछा। मतलब काइंड ऑफ लाइक सिस्टम डिजाइन पे थोड़ा थोड़ा वो लाइक देख रहे थे कि लाइक बंदे का कैसा मतलब कैसा सोच पा रहा है कि लाइक HLD के एक ओवरव्यू की मतलब कैसा वो सोच पा रहा है कि अगर इसको ये कंस्ट्रेंट्स दिए जाए तो ये मतलब काइंड ऑफ सिस्टम डिजाइन पे भी थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू था और आई गेस ये सबको ही पूछा गया है ऑलमोस्ट सबको। आजकल ये भी हो रहा है कि क्योंकि उनको पता है अब ओए में चीटिंग हो रही है डीएसए वगैरह में, तो अब सीधे पूछ रहे ट्रेड ऑफ्स। इनका कोई भी ऐसे एमसीक्यू टाइप आंसर नहीं हो सकता जैसे कोडिंग का होता है। इसमें मोर लाइक सब्जेक्टिव टाइप है ये, तो वो कर रही चेंज। अब पहले एंट्री के लिए नहीं पूछ रहे थे सिस्टम डिजाइन, अब काफी कंपनियां पूछ रही हैं। तो कोई पेन पेपर टेस्ट हुआ था लाइक वहाँ इंटरव्यू में वहाँ आपको कुछ सबको दिखवाया होगा सब कुछ देखो उसने वहां पर आई थिंक मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था उसे, थोड़ा उसने बोला ओके ऐसे बना के एक्सप्लेन करते, बट एज अ होल कुछ पेन पेपर नहीं हुआ। सो आपका टोटल एक राउंड हुआ देन कोई HR राउंड था उसके बाद। ना उसी में ही एचआर बेसिकली कुछ नहीं पूछा, बट ओके आई थिंक ही वाज टेस्टिंग हाउ यू थिंक अंडर प्रेशर एंड जनरल बातें करना। क्योंकि मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे में इन्फोसिस में एक और बंदा था, ही वाज प्रेटी गुड डीएसए में भी, और उसने अच्छी इंटर्नशिप थी। मेरी इंटर्नशिप उतनी अच्छी नहीं थी, उसकी इंटर्नशिप थी अच्छी, लेकिन उसका नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ द वे ही टॉक्स। पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट, कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू के लिए। That's like Hadi, can you please tell us कि उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स पूछे थे नहीं पूछे थे इन इंटरव्यूज और लाइक कितना डेप्थ तक पूछे थे और तो लाइक ओप्स DBMS CN। आई नो, बट मुझे याद नहीं कुछ खास, लेकिन इतना कुछ खास पूछा नहीं था। बेसिक पूछा होगा, जैसे मैंने बोला JWT क्या होता है, और मुझे याद है उसने पूछा था API क्या होता है, मैंने बोल दिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर उसने बस ही वाज रेडी, चल गए। उसने बोला फुल फॉर्म मत बोलो, एक्सप्लेन करो होता क्या है। फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ओके माइक्रो सर्विसेज में इंटरनल APIs होते हैं, या फिर बहुत सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूजर्स को एक्सटर्नल APIs देती है। तो देन ही वाज सैटिस्फाइड। ओके तो ऐसे एंड नहीं लाइक सीरियसनेस का उतना सीन नहीं था मेरे को। ओके ओके और ये लाइक Hadi, what the projects you have worked on लाइक आपने इसे अपनी पूरी लाइक ये बीटेक की जर्नी में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे जो कि आपने रिज्यूमे में मेंशन करे होंगे इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग की लाइक जो आपको रियली हेल्प करा हो एंड तो और किस टेक्नोलॉजी पे अपने प्रोजेक्ट बनाए थे लाइक वेब पे ML पे लाइक और एनी अदर टेक्नोलॉजी एंड ओके, तो इन्फोसिस में उस वक्त मैंने रिज्यूमे में लिखा था ब्लूम फिल्टर, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में आता है। एक्चुअली उसकी शुरुआत हुई थी, मैंने जैसे लोग नेट पे देखते प्रोजेक्ट आइडियाज, मेरा वैसा कुछ नहीं था। हमें सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में आई थिंक ऊप्स या किसी सब्जेक्ट में वीके सर ने दिया था ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट करने को एंड पे। उसी में हमें आया था, मेरे ग्रुप में थे आयमन रेनव, हमने बनाया था ब्लूम फिल्टर। वो लेकिन कोर्स में थोड़ा ही करते हैं ना, तो मैंने उसके बाद गया वापस, फिर मैंने बेंचमार्किंग की और देखा कि कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव वगैरह, और पढ़ा उसके बारे में, तो एज अ होल प्रोजेक्ट बन गया। तो मैंने रिज्यूमे में डाल दिया। वही पूछा, वो इन्फोसिस में भी पूछा और पहले इंटेफ आई थी उसमें भी पूछा। so any other projects you want to highlight और उस वक्त मैंने इन्फोसिस के वक्त मैंने ये डाला था रैग मैंने रैग right जैब बनाया था। बाकी वक्त तक मैंने नहीं बनाया था, उस वक्त मैंने डाल दिया था रिज्यूमे में, लेकिन उसने नहीं पूछा उस बारे में। लाइक इन्फोसिस का उस साइड वो था नहीं मोटिव था ही नहीं लाइक कि वो सारा हाँ डेवलपमेंट कुछ ही वो एंड Hadi लाइक आपका शायद इन क्राफ्ट में भी यू आर वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स
जो फाइनल राउंड में गए थे. फाइनल राउंड तक. So, like, what is your experience in Craft? And if you want to share, like, the experience of any other company, जहाँ तक आप पहुँचे, यहाँ तक आपने use ओके, पाए. इनक्रिप्ट से शुरू करते हैं. तो इनक्रिप्ट वाज द फर्स्ट कंपनी. तो उस वक्त हर एक का मूड डिफरेंट था. एवरीवन वाज एक्साइटेड फॉर इट सेमेस्टर के शुरू में ही. और ऐसा था कि ओके, पहले दिन हुए थे 2 ओए. ऑफलाइन ही था सारा. पहले में इट वाज बिहेवियरल. वो था 10-15 मिनट का था. बट आई थिंक इट वाज नॉट एलिमिनेटरी राउंड नहीं था. फिर उसके बाद 1 घंटे का था ऐसे एनालिटिकल सवाल, पजल्स, ये वाला डब्बा, उसके बाद सर्कल आ रहा है. उसमें मैं अच्छा ही था. और हमें एक्चुअली प्रिपेयर भी था डीएसए के लिए, बट उन्होंने डीएसए कुछ पूछा नहीं. तो ओए वगैरह पहले आई थिंक 150 लोग थे. फिर एक ओए के बाद 100 हो गए. फिर एक ओए के बाद 50 हो गए. फिर शाम तक उनने निकाला कल कितने लोगों को आना है. आई थिंक फिर कल था ऑफलाइन ये इंटरव्यू राउंड नेक्स्ट डे. तो ऑन डे 2 आई थिंक वी स्टार्टेड विद 20 पीपल. डे 2 राउंड 1. फिर उसके बाद थे आई थिंक 10 पीपल लेफ्ट थे. वो राउंड 1 ऐसा था, उन्होंने सुबह के बोल दिया ओके 3 आवर्स आपके पास है, इंटरनेट बंद है, एआई वे कुछ नहीं यूज कर सकते. उन्हें एक हिसाब से हैकाथॉन कराया. 3 आवर्स हैकाथॉन ऑफलाइन. तो उसमें हमें था नोट टेकिंग ऐप बनाना था. मैंने C++ आता था मुझे, और कुछ खास डेवलपमेंट में था नहीं मेरा. तो मैंने C++ में बना दिया एक CLI बेस्ड. अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया ओके ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया मैंने. वाई डी यू चूज, क्लास में क्या रखना है, नोट्स में क्या रखना है. ऊप्स को थोड़ा उसमें पूछ लिया उसी के साथ. एंड और ये भी पूछा कि ओके अगर ऐसे चेंज करेंगे या फिर प्रायोरिटी क्यों यूज़ किया, सर्च फीचर कैसे बनाना है. उनने शुरू में ऐसे दिया था कि ये सब फीचर्स इंप्लीमेंट करनी है. हो गया. उस राउंड में पास हो गया था मैं. एंड नेक्स्ट राउंड वाज अगेन सेम 3 आवर्स हैकाथॉन. लेकिन इस बार एआई अलाउड था. सेम उन्होंने बोला आपका जो प्रोजेक्ट था आप इसको बहुत अच्छा बना, एआई से कितना बना सकते हो. Like to make front end and like. फ्रंट एंड बना. फिर मैंने जैसे एज आई टोल्ड यू आई हैड नॉट डन मच डेवलपमेंट. तो और खासकर एआई के यूज करके भी मैंने बना दिया फ्रंट एंड बैक एंड पाइथन जावास्क्रिप्ट जो भी यूज करके. फिर उस राउंड में लेकिन नहीं हुआ मेरा. तो उसमें आई थिंक द प्रॉब्लम वाज कि उन्होंने एक्चुअली कुछ फीडबैक दिया नहीं कुछ खास. बट उन्होंने ऐसा शायद मे बी इट कुड भी क्योंकि आई थिंक द रीजन इज C++ से तुमने शिफ्ट क्यों किया, या फिर अगर तुमने C++ के वक्त बैक एंड में ये डेटा स्ट्रक्चर या ट्रेड ऑफ चूज किए थे एआई के वक्त क्यों ये चूज किए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने C++ के वक्त मैंने अनडू रीडू फंक्शन होता है ना, उसके लिए मैंने यूज किया था स्टैक. 2 स्टैक्स होते हैं. ओके एक स्टैक में हम एडिट्स करते रहते, और जब अनडू करते हो तो एक स्टैक से दूसरे स्टैक में आता है, रीडू के वक्त दूसरे स्टैक में आता है. वो एक तरीका. लेकिन फिर एआई के वक्त उसने खुद ही बना दिया था लिंक लिस्ट से अनडू रीडू फंक्शन. तो आई थिंक द रीजन कुड मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो. आई थिंक दैट कुड बी द रीजन. और यूआई यूएक्स का भी मेरे को पता नहीं था. तो जो साइट वहाँ से एआई ने दे दी मैंने वही उनको दिखा दी थी. बस मैंने एआई को बोला ओके मेक दिस बटन ऐसा, और फिर इस बटन को बीच में डाल दो. प्रॉपर यूएक्स जो होता है ना, ओके इस क्लिक के बाद यहाँ पर आना चाहिए मेन्यू, वो नहीं बनाया था मैंने. दैट कुड बी अनदर रीजन. ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं दिया फीडबैक. You were also shortlisted in Samsung. Yes. ओके सैमसंग. What's your experience in Samsung and like क्या हुआ है फर्स्ट में और. ओके सैमसंग भी ऑफलाइन था. तो मेरा ऐसा है कि ऑफलाइन में मैं डीएसए में काफ़ी अच्छा हो गया था. तो ऑफलाइन जो भी आ रहे थे उनमें चीटिंग कम हो रही थी, तो मैं हो रहा था पास. ऐसा था. दैट इज माय एक्सपीरियंस थोड़ा. तो सैमसंग भी ऑफलाइन था. उनने फर्स्ट डे को उनको भी था 3 आवर्स में एक सवाल था बस. कुछ खास मुश्किल भी नहीं था वो. आई थिंक मीडियम लीड कोड हार्ड था वो. इजी लेवल हार्ड की भी बहुत डिफरेंस होती है ना, तो उतना नहीं था. वो एक्चुअली हो गया 3 आवर्स का था वो कि, और मैंने वैसे ही क्वेश्चन ऑलरेडी किया था. तो मेरे से आई थिंक 45 मिनट्स टू 1 आवर में हो गया वो. तो मैं निकल गया, हो गया अच्छे से. फिर आई थिंक जब तक 3-4 ओके सो वेयर वाज आई. तो पहले राउंड में एक क्वेश्चन था कि आई थिंक द क्वेश्चन वाज ओके वी आर गिवन
कॉलम्स और उनमें ये है बिट फ्लिप टाइप था वो, एक लेजर अगर डालेंगे उस कॉलम में उस रो में तो सारे फ्लिप हो टॉगल जाएंगे। टॉगल द कॉलम हाँ एग्जैक्टली हाँ कुछ। वैसा सवाल था, तो मैंने वैसा ऑलरेडी सवाल किया था, मेरे से हो गया वो जल्दी जल्दी, तो मैं निकल गया वहां से। मैं खुश भी था, वो इतनी जल्दी हो गया, उन्हें पहले ही मेरा नाम बोला। फिर उन्हें शाम को, उसी शाम को एक और राउंड रखा, सेम था डीएसए टाइप ही लेकिन पेन एंड पेपर बेस्ड। पहला वाला था ऑनलाइन, वो सैमसंग कोरिया सर्वर से होता था चेक वेक। तो इस वाले में इनने पूछा था कुछ डीपी रिलेटेड, मैट्रिक्स बनाना था। मैट्रिक्स डीपी एक ही बात है। उसमें ऐसा था कि ओके, सीट मैट्रिक्स इज लाइक n बाई n सीट्स है किसी जगह, एंड उसमें था कि ओके अगर इस बच्चे को ये इसकी ओरिजिनल सीटें ये नहीं मिली तो नेक्स्ट ऐसे गोल में जाना चाहिए, फिर ऐसे गोल में जाना चाहिए, तो कौन सी सीट उसको मिलेगी। तो डीपी से ओके, डीपी से ये सीट यूज हो चुकी है, फिर हमें उसके लिए ये भी फंक्शन बनाना था नेक्स्ट सीट कौन सी होगी क्लॉकवाइज में, फिर रेडियल डिस्टेंस में। नॉट दैट डिफिकल्ट, हैंड राइटिंग में लिख दिया और मैं अच्छे से कर दिया। लेकिन फिर जब मैंने लिस्ट देखा उसमें मेरा नाम नहीं था। Okay. वो नहीं थी। Like an interview list or like हाँ, जो उसके बाद की जैसे पेन एंड पेपर राउंड था ना, उसके बाद के लिए okay, एक लिस्ट निकाली ने, आई okay. थिंक 10 लोगों से उन्होंने फिर कल के लिए 6 बनाए, 15 से 6 बना दिए। Mm-hmm. तो मेरा नहीं था उसमें, तो कुछ फीडबैक भी नहीं। ओरिजिनली फिर मैं कल सुबह था ना उनका इंटरव्यू, कल शाम तक मैं गया था कॉलेज, डे स्कॉलर हूँ। कल शाम को Mm-hmm. 4 मिले, उनसे मैंने पूछा सर मेरे साथ ऐसा, लेकिन उनने फिर बोला अब हमें पता नहीं है, क्या ही बोल सकते ओके हादी, क्या आप ये बता सकते हैं लाइक कि आपने लाइक लाइक ये 4 साल की जर्नी में प्लेसमेंट जर्नी एंड बीटेक जर्नी में you make some mistakes ना, everyone makes some mistakes, or like we should always learn from others mistake. तो आपने हैं। क्या अपनी प्रिपरेशन के टाइम मिस्टेक्स करी, and like what do you suggest to your juniors and like one who is preparing for placements and all? ओके, तो मेरी मिस्टेक्स एज होल इन द प्रिपरेशन में बोल सकता हूँ कि ओके, जब भी मेरे को कुछ डाउट वाउट होता था, मैं नेट पे देखता था, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लिए। मैं उतना ज्यादा सीनियर्स या दोस्तों से नहीं पूछता था, तो आई कैन सी दैट इज वन मिस्टेक, क्योंकि नेट से देखते तो यूट्यूब ऑप्टिमाइज वीडियोस ही आते हैं ना उस पे, जैसे ओके Mm-hmm. डू दिस टू सेव 10 आवर्स अ वीक, तो एक हिसाब से मैं उनमें फंस गया था। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आई थिंक हमें अलग अलग लोगों से बात करना चाहिए। कभी यूट्यूब पे भी कभी देख लो, मे बी कभी देख लो कि दोस्त के साथ यूट्यूब, उसका एल्गोरिथम डिफरेंट होगा, दोस्त के साथ बैठ के देख वो अब डिफरेंट है। आई थिंक हॉस्टल का वो बहुत बड़ा बेनिफिट है मुझे जो नहीं मिला। मैं डे स्कॉलर था तो क्लासरूम टाइप्स ही मैंने ज्यादा देखा, हॉस्टल में उतना टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने। आई थिंक वो मिस्टेक है। So you recommend कि if you are able to get access of hostels, so हो, try और to get. खाली हॉस्टल में भी दो टाइप के एक्सट्रीम्स है ना, एक होता है अपने कमरे में बैठ के फिर क्लास गया, फिर अपने कमरे में वापस आ गया, अपने डेस्क पे बैठ के ही, वो भी इसी टाइप का लगता है मुझे, वो भी गलत लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे होना चाहिए ओके, कभी क्लास जाओ भी, कभी क्लास छोड़ो भी, कभी दूसरों के रूम में जाओ, कभी टॉक टू डिफरेंट पीपल, रीड बुक्स, लाइक एक्सपीरियंस एवरीथिंग। कॉलेज इज नॉट Okay. अबाउट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो जितना ज्यादा अपना, इसको एक वर्ड भी है, इंक्रीजिंग योर सरफेस एरिया ऑफ लक, ऐसे बोल सकते हैं। Okay. 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 Hadi, I want to ask you for something like you represent ICPC once, I guess in fourth year, if I'm not wrong. हम्म, तो आपका क्या experience था like how you get selected and all, because everyone dreams ICPC. Although अपने कॉलेज में वैसा इतना कल्चर है नहीं है like हम्म, competitive and all, but you still do competitive. And what do you suggest like कि competitive starting से start करना चाहिए या पहले पूरा डीएससी कर लेना चाहिए फिर करना चाहिए? और मतलब काफी जैसे हमने काफी बंदों से बात करी तो उनका भी यही, सबका एक ही कॉमन पॉइंट आता है like कि आई थिंक वी शुड डू competitive फ्रॉम फर्स्ट ईयर. सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? ओके। तो जब मैंने पहले सीपी किया नहीं था, मैं जब डीएसए कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि सीपी इज लाइक ए कंटिन्यूएशन ऑफ डीएसए, कि डीएसए के बाद डीएसए सारे टॉपिक्स कर लिए देन यू मूव ऑन टू सीपी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, सीपी इज मोर फंडामेंटल चीज। जैसे डीएसए में तुम अगर देख लिया ओके,
स्लाइडिंग विंडो या कुछ पैड सब स्ट्रिंग मैचिंग करनी है, तुम देखते हो कि स्लाइडिंग विंडो लगेगा इस पे, 2 पॉइंटर लगेगा इस पे। सीपीयू तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से थिंक करना शुरू कराता है। जैसे तुम पहले ही नहीं सोचते हो कि ओके ग्रीडी वर्सेस डीपी, जैसे बहुत लोग डीएसए में आगे भी होते हैं ना, इमीडिएटली वो सोचते हो ग्रीडी लगाऊं कि डीपी लगाऊं। उसे डीएसए भी हो जाते हैं, बट एज अ होल तुम्हारा जैसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है, वो सीपी से। मेरा ओपिनियन है कि फर्स्ट ईयर से अगर तुम कर रहे हो तो सीपी कर लो, क्योंकि बहुत टाइम है भी, प्लेसमेंट से भी 1-2 महीना ही है डीएसए कर सकते हो। खासकर अगर तुमने किया है ये सीपी ऑलरेडी, तो डीएसए बहुत इजीली पिकअप कर सकते हो। तो अगर 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स काफी है डीएसए के लिए, उससे पहले से मुझे लगता है सीपी करना चाहिए। सीपी में भी वगैरह होते हैं रेटिंग बेस्ड, टॉपिक वाइज ज्यादा नहीं होता, और वो जैसे ओलंपिक प्रिपरेशन होता है वो भी कर सकते हो, कोडिंग ओलंपियाड। Okay. And how was your experience with ICPC? You represent at regionals. हाँ, आईसीपीसी में तो ऐसा होता है एक्चुअली, उसके लिए बहुत लोग तो सालों से प्रिपेयर करते हैं। हम उतना प्रिपेयर नहीं थे, हमें टीम भी नहीं थी। हमने लाइक 1-2 महीने पहले उसका ऐसे राउंड ऐसे होते हैं। फर्स्ट होता है ऑनलाइन राउंड, प्रीलिम्स सारे सब लोगों के लिए। फिर उसके बाद होता है रीजनल्स, मानो इंडिया में 2-3 रीजनल्स ही होते हैं, कानपुर, मिर्जापुरी। फिर उसके बाद इंडिया के बाद सिलेक्ट हो जाती हो, फिर होता है कॉन्टिनेंट एशिया वेस्ट। एशिया वेस्ट में जैसे आता है इंडिया और अरब कंट्रीज, पाकिस्तान, ईरान वगैरह। उसके बाद आता है वर्ल्ड फाइनल। सो ये मानो 1 साल का जो आईसीपीसी होता है वो 1 साल से ज्यादा में चलता है। मानो जैसे मैंने ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स पहले दिया आईसीपीसी रीजनल्स, उसका कॉन्टिनेंटल वाला हो रहा था अब और वर्ल्ड फाइनल्स होगा कुछ महीने बाद, तो लगभग 1 साल लगता है। तो और एज अ होल इट्स अ टीम बेस्ड कि ओके हर एक बंदा अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करना चाहिए, बट एज अ टीम तुम ट्राई टू सॉल्व। ओके इस बंदे की स्ट्रेंथ ये है, वो ये करेगा, इसकी वीकनेस ये है, तो टीम कंपटीशन एक हिसाब से। तो वहाँ जाने से पहले हमको पता ही था कि ओके वी आर नॉट गोइंग टू विन टीम, के वहाँ पर इंडिया के टॉप सीपीयर्स होते हैं, बट इट वाज स्टिल एन ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी था। और जैसे मैंने टॉप कैंडिडेट मास्टर्स से भी मिला वहाँ पर, एंड दे वर गाइस। ऐसे नहीं जैसे हम बोलते यूट्यूब पे कि हम्बल बंदा है, और मिलके मुझे लगा जैसे मैं एक बंदे से बात कर रहा था नॉर्मली जैसे हम करते बात, फिर मुझे बाद में पता चले ओके मास्टर है, एंड उसने बोला भी नहीं। ऐसा नहीं कि पहले ही सेंटेंस में ओ मैं आईटी रूट की सीएस से हूँ, ऐसे बंदे नहीं थे। तो उसे और हर एक जब वो बातें भी करते हैं ना, उनसे लगता था ओके नॉलेज से बात कर रहा है, ऐसा इनमें जाना चाहिए। वेरी हम्बलिंग भी वो था और मोटिवेटिंग एक हिसाब से भी था। Nice. Do you have any hackathons experience or something like that? ओके यस। तो पिछले सेमेस्टर में इवन तो मेरी प्लेसमेंट हो गई नहीं थी, मैं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गया। मेरे को लगा कॉलेज खत्म हो रहा है, अभी तक मैंने किसी में किया ही नहीं। तो 3-4 ऐसे हैकाथॉन्स, प्रोजेक्ट शोकेसेस, इन सब में किया मैंने। हैकाथॉन एक तो मैं गया था आईयूएसटी यूनिवर्सिटी, तो टीम बेस्ड था वो भी, लेकिन सीपी कॉम्पिटिशन टाइप भी था वहां पर भी हम, लेकिन सेकंड आए, फर्स्ट भी एनआईटी के जूनियर्स ही आए। और हम गए थे बीआईएस का शोकेस भी था प्रोजेक्ट्स का। ओके इस बीआईएस एनवायरनमेंट से रिलेटेड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल गोल्स थे, उस रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट बनाना था। वो भी ग्रुप प्रोजेक्ट बना, उसमें भी हम जीत गए, 3rd पोजीशन कुछ आई। वो जैसे मैं इससे पहले बोल रहा था कि अपने कमरे में मत बैठो, अपने दोस्तों से टीम बनाओ, हर एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट। परसों कर्सर है हुआ था कॉलेज में, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, इवन दो जीता कुछ। स्टिल यू लर्न अ लॉट। Yeah, hackathon is a like playground to play. Whether it यू be लर्न अ लॉट, yeah, you learn a lot from लोग क्या कर रहे हैं। और वो टाइमली प्रेशर ऐसा होता है ना कि लाइक मतलब जितना आप आउटपुट निकालते हो उससे ज्यादा आउटपुट निकल जाता है इन जनरल, क्योंकि वो प्रेशर होता है तुम्हारे पे। So, yeah, anything else you want to share or you can just conclude this? एक पॉइंट मैं शेयर करूंगा कि ओके आजकल मैंने ऑनलाइन भी देखा बहुत लोग टेंशन में होते हैं, चीटिंग बहुत हो रही है। चीटिंग हो रही है बहुत, जैसे मेरे साथ मेरे अगेंस्ट भी हुई चीटिंग, बट आई वाज गुड एट माय थिंग। और हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए।
ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस नहीं कि ओके चीटिंग खत्म हो जाएगी, मे बी ना हो, बट ऑप्टिमिस्टिक कि ओके जितने हाथ में मेरे हाथ में जितना था, जितना मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मैं एक बुक पढ़ रहा था 7 बुक, उसमें भी लिखा था सर्कल ऑफ कंसर्न मैच करना चाहिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से। कंट्रोल, जो हमारी चीज में कंट्रोल में है नहीं उसके बारे में क्यों करना, ओके चीटिंग हो रही है, होती रहेगी हर वक्त, लक प्लेज अ रोल, ये ऐसे पहले भी लक प्ले कर रहा था रोल। Yeah, luck plays a lot of role हाँ, in ये this. मुझे प्लेसमेंट से पता चला काफी, वरना मुझे लगता था ओके ए से बी होगा, बी से सी होगा, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत रैंडमनेस होती है, इसलिए वी शुड नॉट ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज पाथ। ओके प्लेसमेंट के 1-2 महीने पहले करो ऑप्टिमाइज, जैसे जेई के वक्त ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ओके ये है टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो करना चाहिए, लेकिन फुल कॉलेज लाइफ में नेवर डू इट। आई थिंक वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। Okay, okay. Yeah, nice experience and nice lessons. So Hadi, we can conclude this session. Thank you for being part of this interview session. Basically, we learned a lot of things from you. Your experience are really good in ICPC and project internships and all. Your Infosys experience is really good. So yeah, that's all from my side. So thank you for being part of this. थैंक यू।